was, which disturbed even our ethics and values, and which was a continuation of yesterday's talk. And cordless mic is there? If they have questions, they can ask. So this is a part of the examination. So since this is a part of the examination, whatever is covered today and tomorrow, both will be in your midi quiz. So kindly make your notes and your part of it mid-sem, whichever factor comes. So whatever questions are covered, whatever things are covered, they will be part of the curriculum. Okay? So today we will continue our own discussion what we had at orientation about the nature of mind, and sir did a basic meditation practice. Just now we had Om and then whole body scan. How was your experience? How was the experience of body scan? Right? So sometimes we are working very fast, and we do not have time to even listen to our own body. Right? So we will slow down ourselves, understand the science, understand our own self, understand how our brain is working. Two things in the universe has not been thoroughly researched in the whole world. One is universe theory, other is brain, mind, neuroscience. Both the things are very far from reality. Right? So we will be discussing, having our continuation of yesterday's question answers, and it would be again in the podcast manner so that you can get objective what question was asked, what are the answers, and similar thing can come in examination. Right? So and it will make it interesting. So here we will start our podcast, and we will welcome Chetan Charan sir for this program. So we had a long discussion yesterday about self-confidence and negative talk. Is it audible? So we heard about our discussion ended at the constant talk which goes in our brain constantly. Continuing that, we do understand brain is a hardware, but we know somebody is talking, and sometimes we call it that software as mind. What is this entity mind? And how do we experience it? Can we experience it? How do we know it's there? Yeah. See, throughout history, one of the greatest mysteries, there are many mysteries in the universe, but one of the greatest mysteries has been why we human beings work against ourselves. All living beings try to survive. And if you study biology, every living being has remarkable capacities to survive. Yet, we humans are almost alone in sabotaging ourselves, in doing things that hurt us. So, there are different schools of thought which have come up with different answers to this. But let me first explain the problem. So, before I was introduced to spirituality, I was a part of a social welfare organization, and we used to go to slums and we used to offer free tuition classes for the kids over there. And when talking with the kids, I came to know about how their homes were a mess. There's domestic violence, alcohol abuse, and we decided that we want to open doors for them. So if you consider education is a door. Employment is a door. And through the doors, if we walk through, we get to a better life. Sorry, हिंदी ठीक है. तो जो हम सब हमारे जीवन में दरवाजे खुलना चाहते हैं जिससे कि हमारा जीवन और अच्छा बने, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा. और ये सत्य है, पर इसमें कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के रास्ते में ही ट्रैप डोर्स है. और ये ट्रैप डोर्स में अगर हम गिर जाते हैं तो हम खुद को सैबोटाज कर देते हैं, हम खुद का ही विनाश कर देते हैं.
तो जो ट्रैपडोर्स जो है दे फॉल इन 2 कैटेगरीज. वन इज़ डिज़ायर्स, कि कभी कभी हमारी इच्छाएं ही ऐसी हो जाती है वो एडिक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो जाती है. और दूसरा है इमोशंस. कभी कभी हमारे इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं. इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जब हमने विश्लेषण किया था किस तरह से हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है. तो ये जो ट्रैपडोर्स है हमारे ही जीवन के रास्ते में है, और जितना हमको ये दरवाजे खोलना ज़रूरी है अच्छा शिक्षण प्राप्त करके, अच्छा नौकरी प्राप्त करके, पर उतना ही ज़रूरी है कि ये दरवाज़ों को, अंदर के दरवाजे जो है, ट्रैपडोर जो है इसमें हम गिर जाते हैं, उसको बंद करना. तो ये ट्रैपडोर्स का सोर्स कहाँ है, कहाँ से आते हैं ये? तो अंदर से कुछ प्रॉम्प्ट करता है हमको, जो हमें ऐसे चॉइसेस की ओर जाता है जो हम जानते हैं कि अच्छे नहीं है. तो हम जानते हैं कि थोड़ा टेंशन आ गए, जो इस पर चिल्लाऊँगा इस व्यक्ति पे तो ये समस्या और बड़ी हो जाएगी, रिश्ता और ख़राब हो जाएगा, पर फिर भी कुछ बोलते चिल्लाओ. और हम सिंपली बोलते हैं अरे मुझे डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए. वो सत्य है एक तरह से, पर वो अंदर क्या हो रहा है वह समझना ज़रूरी है. तो ये जो अंदर की जो ट्रैपडोर्स है ये कहाँ से आते हैं? कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ करते हैं और फिर बाद में सोचते रहे मैंने ये क्यों किया, और क्या मैंने किया ये. जैसे अल्कोहलिक्स है, यहाँ पे पीछे नशा छोड़ने के लिए कुछ प्रमोशन है कि जैसे अल्कोहलिक्स होते हैं वैसे शॉपोहलिक्स होते हैं. तो शॉपोहलिक्स का क्या आइडिया होता है? शॉप 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 टिल यू ड्रॉप. इसको पूछते हैं कि अरे आप जाते कोई मॉल में 5 चीज़ें खरीदने के लिए और 50 चीज़ें खरीद के ले जाते. अभी आजकल तो हमारे फ़ोन से ही हम खरीद सकते हैं. किसी पूछ अरे आपने क्यों खरीदा, अरे क्यों खरीदा, खुद को ही पता नहीं ऐसे लगता है. तो ये ऐसे लगता है कि अंदर से कुछ आता है और इट टेक्स ओवर अस. तो वो क्या है? तो उस समय जब मैं सोशल सर्विस में थोड़ा लगा हुआ था तो हमने डी एडिक्शन में लग गए हम. और तभी वी स्टार्टेड टॉकिंग विद द पेरेंट्स कि कैसे नशा से कि आपका कितना प्रॉब्लम होगा, आपके बच्चों को कितना प्रॉब्लम होगा. कुछ एक्सपर्ट्स को इंस्पिरेशनल टॉक लाने के लिए लेके आए. तो एक छोटा सा स्लम्स था, वहाँ पे एवरीबडी डिसाइडेड टू गिव अप अल्कोहल. वी आर वेरी हैप्पी. पर फिर सेमेस्टर ब्रेक हो गया, हमारा घर चले गए हम सब. तो जब वापस आ गए मैं, तो फिर वहाँ न केवल वो पिता या माँ था, वो बच्चे भी शराब पीने लग गए थे. तो क्या हुआ था, बीच में एक म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन था और उस इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने वोट्स प्राप्त करने के लिए ट्रक लोड्स ऑफ लिकर सबके लिए लेके आए थे फ्री. तो तभी ये अभी विद्यार्थी को जानता था मैं, एक्चुअली अर्नेस्ट थे, पढ़ाई करना चाहते थे, पर वो भी उस ट्रैपडोर में फंस गए. तो ये ट्रैपडोर को कैसे बंद करना है, ये केवल एक आइडियल क्यूरियोसिटी नहीं है, हम सबके लिए ज़रूरी है. तो तब से मैं थोड़ा अंदर के बारे में पढ़ने लग गया, भगवद गीता के बारे में पता चला मुझे. तो भगवद गीता में दैट्स अ मॉडल ऑफ द सेल्फ. कैसे है कि अगर ये आत्मा है, ये शरीर है, तो कई बार क्या होता है हमारे अंदर जो होता है, जो अंदर से जो आवाज़ आती है वो सोचते हैं मेरी आवाज़ है, या अंदर से जो इच्छा आती है ये मेरी इच्छा है. बट गीता क्या बोलती है कि एवरीथिंग इनसाइड मी इज़ नॉट मी. जो सब कुछ मेरे अंदर से आ रहा है वो मेरी इच्छा या मेरी भावना ज़रूरी नहीं है. क्योंकि क्या है, अंदर 2 चीज़ें हैं. अंदर अगर ये शरीर है तो अंदर अल्टीमेटली आत्मा है, पर अंदर मन भी है. तो क्या है, दोनों ये इनसाइड ही है. और कई बार ये जो मन की आवाज़ होती है उसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी इच्छा है, और उससे हम गुमराह हो जाते हैं. सो माइंड ये है क्या, ऐसे आप बता रहे थे कि बॉडी अगर हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, सोल जो है वो यूज़र है. तो अभी हार्डवेयर जो होता है, अभी मेरा ये टैबलेट है, ये टैबलेट उठ के मेरे और नहीं आने वाला है. रोबोट चल सकता है, पर हार्डवेयर नॉर्मली पैसिव होता है. हार्डवेयर को चलाता कौन है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को चलाता कौन है? यूज़र. तो अभी सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर से ज़्यादा एक्टिव लगता है. तो क्या है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी इनएक्टिव भी होता है तो भी मन अंदर एक्टिव रहता है.
तो मन क्या है, एक तरह से प्रोग्राम है, वो प्रोग्रामिंग से अपने आप पॉपअप्स आते रहते हैं, ये देखो, ये खाओ, ये इसको टच करो, ये करो, वो करो, जो वो प्रोग्रामिंग जो आते रहता है उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये अंदर का प्रोग्रामिंग जो है, सो आई एम मोर देन माई प्रोग्रामिंग एंड आई कैन चेंज माई प्रोग्रामिंग। ये जो गीता का इंसाइट है, दिस इज वेरी एम्पावरिंग फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो सर आपने जैसे बताया कि बार बार पॉपअप आते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि ये पॉपअप मैं नहीं हूँ। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, एक बार किसी मित्र से लड़ाई हो गई, तो पूरी रात मेरे दिमाग में कभी ये पार्ट इससे बात कर रहा था, वो पार्ट इससे बात कर रहा था, उसने ऐसे क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों कहा। तो ऑल्दो मैं सोया हुआ था, लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में ये पॉपअप चल रहे थे। ये पॉपअप क्यों आते हैं, इसको मैं तो नहीं बुला रहा हूँ। तो अभी देखिए, जो मन है वो, उसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक है कि इट इज़ वर्किंग फॉर अस, वो केवल एक मशीन है, वो काम कर रहा है, पर वो जब काम कर रहा है, वाइल वर्किंग फॉर अस इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट अस। आई एक्सप्लेन जैसे कैसे होता है कि अभी जो प्रोग्रामिंग है, मतलब क्या है कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में एक छोटी सी चीज़ है, किसी ने सुनी आप ये चीज़ है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा मूवी इंडस्ट्री है, तो किसी ने अपने ब्राउज़र में एक वेबसाइट विज़िट किया है, bollywood.com। तो अभी शायद 5 बार, 10 बार, 50 बार विज़िट किया है, और अभी वो ऐसे इसको ऐसे टॉक में आते हैं और थोड़ा भगवद्गीता के बारे में जानते हैं। तो फिर सुनते हैं उसके बारे में, तो सोचते हैं कि भगवद्गीता के बारे में जानना है, तो अपने ब्राउज़र को खोलते हैं और भगवद्गीता टाइप करने लगते हैं। जब भी टाइप करते हैं तो फिर ब्राउज़र में क्या आता है, ऑटो कंप्लीट बॉलीवुड आ जाता है। वे बॉलीवुड क्यों आ रहा है, उनको बॉलीवुड जाना नहीं था, bollywood.com पे जाना नहीं था, पर क्या हो गया, पहले गए थे तो वो ऑटो कंप्लीट आ जाता है। तो अभी क्या है, ब्राउज़र हमारा शत्रु नहीं है। इन वन वे द ब्राउज़र इज़ वर्किंग फॉर अस। जो साइट्स हमने पहले विजिट किए हैं उसको हमको ऑटो कंप्लीट दे रहा है। पर क्या हो रहा है, वाइल द ब्राउज़र इज़ वर्किंग फॉर अस इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट अस। मतलब मुझे भगवद्गीता के बारे में जानना था, पर वो bollywood.com ऑटो कंप्लीट आ गया, मैं उधर चला जाता हूँ, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो वैसे ही क्या है, हमने जिन चीज़ों के बारे में विचार किया है पहले, अरे इसको ऐसे करना चाहिए था, वो वैसे करना चाहिए था, तो वो विचार जब पॉपअप आ जाते हैं, मतलब क्या है, हमारे मन के ब्राउज़र में वो ऑटो कंप्लीट हो रहा है। तो जब इस तरह से मन के ब्राउज़र में ऑटो कंप्लीट आ जाता है, तो फिर कभी ये आ गया, वो आ गया, ऐसे इससे क्या होता है, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी इसका सोल्यूशन वास्तव में ये है कि जब वो ऑटो कंप्लीट होता है, तो वो ऑटो कंप्लीट को हमें क्लिक नहीं करना, क्लिक ज़रूरी नहीं है कि मुझे वहाँ पे जाना है। तो अभी हमारा मन कैसे है, उसमें अनेक प्रोग्राम्स हैं, और अनेक प्रोग्राम से अपना अपना पॉपअप आते रहता है। तो सारे पॉपअप क्या है, सम ऑफ देम मे बी इवन वैलिड कंसर्न्स। अरे शायद मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, वो सोचना चाहिए था मुझे, पर जब रात को सोने को बैठे तभी वो ऑटो कंप्लीट भी चाहिए नहीं है। तो मन एक प्रोग्राम है, वो एक्चुअली इट शुड वर्क फॉर अस, बट समटाइम इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट अस। आप लोग भी अपने प्रश्न मन में आ रहे होंगे, वो पॉपअप कर रहा होगा, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, राइट, और कोई ना कोई आपके पास माइक सिस्टम अरेंज करेगा, माइक आ जाएगा। तो एक प्रश्न सर ये आता है कि पॉपअप हमेशा नेगेटिव क्यों आ रहा है। जैसे यहाँ बैठे हैं तो हमारा ये पॉपअप नहीं आता कि अच्छे से क्लास को सुने, पॉपअप ये आता है कि चलो बाहर चलते हैं। तो हमेशा पॉपअप मैक्सिमम टाइम नेगेटिव ही क्यों आ रहा है। ये जो है पॉपअप नेगेटिव क्यों आता है, वास्तव में माइंड जैसे बताया था कि जो उसका फंक्शन होता है वो हमें हमारे लिए काम करना है, पर वो हमारे ऊपर काम करने लगता है, मतलब हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अस इंस्टेड ऑफ फॉर अस। तो ये एक तरह से ये हमारा एक हिस्टोरिकल जेट लैग हो गया। हिस्टोरिकल जेट लैग का मतलब क्या है कि अगर हमारे बायोलॉजी के दृष्टि से देखते हैं हम कि वी कैन एक्सपीरियंस प्लेजर और पेन, हम सुख और दुख अनुभव कर सकते हैं,
पर एक तरह से जितना सुख अनुभव कर सकते हैं वो सीमित है, पर जो दुख अनुभव कर सकते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम कुछ खाते हैं, कुछ सॉफ्ट टच करते हैं तो उससे कुछ प्रसन्नता होती है, पर अगर किसी का शरीर जलने लगता है तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन गेट बर्न्ड। वाई, क्यों बता रहा हूँ मैं कि आवर वल्नरेबिलिटी फॉर टू पेन इज ग्रेटर देन आवर कैपेसिटी फॉर प्लेजर। तो मान लीजिए कोई अभी यहाँ पे इतना सारा ग्रीनरी है, ग्रीनरी में चल रहा है वो, तो चलते चलते अगर कोई ऐसा बहुत सुंदर फ्लावर्स है वो देखता नहीं है, थोड़ा सा ब्यूटी मिस कर लिया, थोड़ा प्लेजर नहीं आया उसको, दैट्स ओके। पर जब चल रहा है सामने एक सांप है, वो सांप को मिस किया तो क्या होगा, वो सांप बैठ गया तो मृत्यु हो सकती है। तो ये व्हाट आई एम सेइंग बाय दिस इज कि हमारे बायोलॉजी से ही कैसे हो गया है कि वी आर मोर अट्यून्ड टू डेंजर देन टू प्लेजर। क्योंकि क्या है, डेंजर से जो पेन हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अभी प्राचीन समय में या इन द पास्ट बिफोर हमारे टेक्नोलॉजी आने के पहले क्या था, जनरली डेंजर्स वेर एसोसिएटेड विथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अरे यहाँ पे कोई सांप है, यहाँ पे कोई खड्डा है, यहाँ पे कुछ अग्नि जल रही है। पर अभी हमारा आजकल का जो सोसाइटी है ये इतना इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड है कि जो डेंजर्स है उनका कुछ टेंजिबल कॉज नहीं है। तो इसीलिए अभी क्या होता है, ठीक है सांप है मुझे डर लगता है, सावधान रहना है, पर अगर सांप नहीं है तो डर नहीं लगता है। पर अभी आजकल के समाज में कैसे है, अभी रिसेशन कहीं से हो गया, रिसेशन दिखता नहीं है हमको, पर रिसेशन से किसी की नौकरी चली जा सकती है। अभी कहीं मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, उसके कारण क्या है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, अभी चिंता हो गई। तो क्या है टुडे, तो इन जनरल हमारा बॉडी और माइंड का मशीन ऐसे है कि इट इज़ मोर अट्यून टू डेंजर। पर अभी ये मिसफायर क्यों हो रहा है कि आजकल के समाज में जो डेंजर्स है दे आर नॉट सो मच टाइड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। उसके कारण क्या होता है कि अभी देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा मन है, ये बॉडी है, तो अभी ऑब्जेक्ट अगर डेंजर होगा तो मन में फियर आता है, और ये फियर बुरा नहीं है। कभी बोलते हैं कॉन्कर ऑल योर फियर्स, नहीं, ज़रूरी नहीं है, फियर भी अच्छा है। फियर से क्या होता है, एक अलर्ट सिग्नल आता है कि डेंजर है। एक मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, वो एक 10वीं मंजिल की खिड़की से नीचे झांक रहा है, देख रहा है, हाँ, उसकी माँ कहती दूर हो जाओ, मुझे डर नहीं लगता है। वो बच्चा बोलता है 3-4 साल का बच्चा, मुझे डर नहीं लगता है। तो माँ बोली इसीलिए मुझे डर लगता है। तो क्या है, फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अननेसेसरी डेंजर। पर आजकल के समाज में कैसे हो गया है कि जो डेंजर का है, जो डेंजर ये विजिबल नहीं रहा है, कॉन्क्रीट उतना नहीं है, तो उसके कारण क्या है, ये माइंड जो है उसको कहाँ से डेंजर आ रहा है समझ भी नहीं आता है। तो द माइंड स्टेज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर। तो जो एंग्जाइटी कहते हैं हम, तो क्या है, ये ऐसे लो ग्रेड फियर होता है, वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट से टाई होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि हमारा जो मन है वो एक बायोलॉजिकल जो नीड थी उसको भी मिसफायर हो गया। इसीलिए कई बार क्या होता है, जो भय हो, नकारात्मक इमोशंस हो, नकारात्मक चीज़ें हो, उसकी ओर आसानी से चला जाता है। आप सब लोग प्रश्न, हाँ, कॉर्डलेस अच्छा, जो प्रश्न पूछेगा दैट्स वेरी गुड। आ जाइए, गर्ल्स को आ जाए, जो सीट खाली आप सबसे के बैठिए, बीच में ही बहुत सीटें खाली हैं, आप हाथ दिखा दीजिए, बच्चे बैठे हैं। जहाँ जहाँ बीच में सीट खाली है, एक मिनट बैठे। तो ये जो सर ने बताया है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से कौन स्टेज में आकर यहाँ पर कुछ बोलना चाहेगा? कोई है, कुछ बोलना चाहेंगे? अगर मैं किसी को बोलूँगा उसको डर लगेगा? केवल स्टेज में आने से डर लगेगा कि डर लगेगा? तो सर जो बताना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा नहीं कि शेर को लाना पड़ेगा तो आपको डर लगेगा, केवल स्टेज में बुला लेंगे तो भी डर लग जाएगा। तो वो जो फियर पहले एक
ऑब्जेक्टिव शेयर के रूप में था, आज वो बहुत सटल रूप में चल रहा है, जो आपके इंटरव्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सर की चीज़ को थोड़ा सा मैं दर्शाता हूँ। हम सब लोग IIT की तैयारी करने गए, राइट? पूरे 2 साल हम लोगों ने शेयर देखा। कौन सा शेयर था वो? IIT का एग्ज़ाम। मुझे याद है जब मैं देने गया था और देने के बाद मैंने कहा हो या ना हो, लेकिन दोबारा नहीं जाऊँगा। मैं दोबारा कोटा नहीं जाने वाला हूँ और मेरे से नहीं होने वाला है, और इस बार हो गया तो लकीली हो गया था, इसलिए निकल गए, नहीं तो दोबारा मेहनत करने की ताकत नहीं। तो ये सटल चीज़ जो पहले एक कॉन्क्रीट स्नेक के रूप में था, अब सटल आ चुका है, और इसके कारण हम हर समय किसी न किसी नेगेटिव पॉपअप पे शिकार हो जाते हैं। आपका नाम? सर आर्यन मोडल। आर्यन आपका प्रश्न? Because Sir, as you sir mentioned the difference between mind and like soul, so I just want to know कि if I'm asking question, so is it soul or mind? I'm getting in other words, is soul or mind? I just difference between. आर्यन का प्रश्न है सबके लिए कि सोल और माइंड में क्या अंतर है। आगे यहाँ 2 सीटें खाली हैं, आप यहाँ बैठ जाइए इधर, और यहाँ जो 2 हैं वो 3 एडजस्ट कर लीजिए, इसमें और एक वो भी खाली है। हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो खड़े रहेंगे, और एक इधर वाली खाली है, इधर भी एक सीट खाली है, ये इधर भी एक सीट खाली है। फ्रंट में एक सीट खाली, वो चेयर को ऐसे करें। हाँ, तो आर्यन का प्रश्न है कि सोल और मन में क्या अंतर है? तो अभी यू कैन सिट कंफर्टेबल। तो अभी भावनाएं जो है वो वास्तव में कौन अनुभव कर रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है हमारे इसमें? सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है, अगर ये समझ पाएंगे हम तो फिर वी कैन बेटर मैनेज आवर इमोशंस। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो व्यक्ति किसी और से मिलने जा रहा है जिसका थोड़ा टेंस बातचीत होने वाली है, तो व्यक्ति किसी और को बोलता है कि मैं वहाँ पे अगर गुस्सा होने लगा तो मुझे आप जस्ट टैप मी ऑन माई शोल्डर, मुझे याद दिलाओ कि गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा मत हो जा। तो अभी क्या होता है कि वो व्यक्ति को कोई और याद दिलाता है, भैया गुस्सा मत करो, थोड़ा शांत रहो। शायद वो शांत रहेगा, शांत नहीं रहेगा, पर क्या वो एक्सटर्नल रिमाइंडर आ रहा है इसको। तो वैसे ही क्या है, हम खुद को भी इंटरनल रिमाइंडर दे सकते हैं। तो मैं जो पॉपअप बता रहा था, तो जो ये सोल है, आत्मा है, वो एक इनर ऑब्जर्वर है, और जो मन है वो अंदर का एक स्क्रीन है। हम सब के अंदर एक स्क्रीन होता है, खास करके अगर हम रात को सोते हैं तो अगर नींद नहीं आ रही होती तो हम आंखें बंद की है, पर मन में अलग अलग चीज़ें, अरे उसने ये बोला, वो हुआ, वो सब जैसे सर बताया तैसे होता है। वो क्या, एक मन है, मन के अंदर एक स्क्रीन है, अंदर ही कुछ स्क्रीन है, उस पर चल रहा है सब कुछ। तो ये स्क्रीन है वो माइंड है, पर ये स्क्रीन को जो देखने वाला सीयर है वो आत्मा है। तो जब हम बहुत आसक्त होते हैं तो क्या होता है, ये सोल और माइंड बिल्कुल पास में आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्क्रीन पे आ गया वही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। और कुछ सर का उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार मैं ऐड देख रहा था, दुखी था। ऐड में एक हीरो हीरोइन आए, बोले हम भी बहुत दुखी हैं। फिर हमारे पास ये गाड़ी आई और हम खुश हो गए। मेरे को लगा वो खुश हो गया, इसका मतलब है मैं भी दुखी हूँ, वो गाड़ी ले लूँगा तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। जैसे सर बता रहे हैं कि मैं भी अपने मन से बहुत आसक्त हो गया था और मन को वो गाड़ी चाहिए थी, तो ये दुख और इसको जोड़कर मैंने ये सोचा कि गाड़ी लेने से मैं सुखी हो जाऊँगा। जब गाड़ी लेके आया तो दूसरा आया, मेरे पास पहले ये गाड़ी थी, अब मैंने ये बड़ी वाली ले ली, मैं ज़्यादा खुश हो गया। फिर मेरे मन ने कहा अभी अभी तो लाया हूँ, लगता है इसमें सुख नहीं है, उसमें सुख है। थैंक यू। तो ये जो अंदर पॉपअप आते हैं वो कोई देखता है, तो जो देखने वाला जो है वह आत्मा है। और कभी कभी हमें भी ये एहसास होता है कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी मान लीजिए कि आपका
6 महीने के बाद एग्ज़ाम है और आपके मन में विचार आता है अरे ये नया नेटफ्लिक्स पे मूवी आया, मुझे देखना है मूवी। तो ठीक है, 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, देख लेते मूवी। पर अगर 6 घंटे के बाद एग्ज़ाम है तो फिर क्या होता है, वो वापस अगर आइडिया आएगा चलो हमको मूवी देखना है, तो क्या होता है, वो तभी भी वही पॉपअप हो रहा है पर ये पॉपअप को हम क्रॉस कर देते नहीं। तो क्या है कि जैसे मैं पहले बताया था, एवरीथिंग इनसाइड मी इज़ नॉट मी। जो अंदर पॉपअप हो रहा है एक तरह से वो एक स्क्रीन पे आ रहा है, और जितना मैं समझ सकता हूँ कि ये स्क्रीन और मैं अलग है, तो फिर जो स्क्रीन पे जो आ रहा है वो जो पॉपअप क्या मेरे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है, देख सकता हूँ मैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पढ़ाई कर रहे हैं और फिर तभी पॉपअप आता है कि आपके फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे नया पोस्ट किया है, तो अभी वो पॉपअप इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पर अगर आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपका पॉपअप आता है कि आपका फ़ोन अभी डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर आपको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो क्या है कि ये सब पॉपअप्स जो है वो बुरे नहीं हैं। समटाइम्स द पॉपअप्स कैन बी यूजफुल ऑल्सो, बट जो व्हेन द पॉपअप्स कम हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तभी क्या होता है, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको उसके हम कंट्रोल में चले जाते हैं। भगवद्गीता में इसको बताया ध्यायतो विषयान पुंसः, कि बहुत से पॉपअप्स आते हैं पर जब हम उस पर फोकस करने लगते हैं, उसके बारे में इमेजिन करने लगते हैं, फिर उसे हम पकड़ जाते हैं। तो इसको आई जस्ट कंक्लूड वन सेंटेंस। अगर आप इस क्लास से पूरा सब कुछ भूल जाओगे, इस क्लास से एक चीज़ याद रखो, whatever catches your attention catches you. Can you repeat after me? Whatever catches your attention, can you repeat loudly? Whatever catches your attention catches you. तो catches your attention मतलब क्या है, वो अंदर पॉपअप हो गया और वो हमको पकड़ लिया, हमारा अटेंशन उसको पकड़ लिया, तो हम पकड़े जाते हैं। सर के यहाँ आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ एक दिन यहाँ बैठिए इस वाले में, ये चेयर सामने आपकी चेयर है, बीच में कहीं सीट खाली है, वहाँ खाली है, वहाँ जाइए, अपने वॉलंटियर्स देख लीजिए, सीट्स बीच में खाली हैं। सर के उदाहरण से मुझे अपना एक खुद का आ रहा है, जेई से रिलेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तुरंत रिलेट कर लोगे। हमारे टाइम में AIEEE और IIT अलग होता था, अभी सब कंबाइन हो गया है। तो कोटा गए थे, कोटा से वापस आ गए, कोर्स खत्म हो गए थे, बंसर क्लासेस फेमस होती थी, तो बंसर क्लासेस वापस आ गए। मैं सतना का हूँ, सतना आ गया था। एक दिन टेरेस में बैठा हुआ था, एडमिट कार्ड का हमने फॉर्म भरा था। AIEEE के एक सेक्शन में मुझे डाउट था कि मुझे भरना है कि नहीं भरना है, तो पापा से पूछूंगा फिर भरूंगा। अच्छा, सब हो चुका। एक दिन सुबह 10-15 दिन में एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आना था AIEEE का। एक थॉट आया, मैंने वो भरा था कि फिर दूसरा थॉट आया, IIT का तो भरोसा नहीं, लेकिन अगर NIT भी चला जाएगा तो क्या करूँगा, क्योंकि AIEEE का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। IIT भी गया, NIT भी गया, दोबारा करने की हिम्मत नहीं। उस समय स्टेट PET होता था, PET तो फॉर्म ही नहीं बना, तो अब क्या करूँगा। तो अब दोबारा कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो मैरिज नहीं होगा, मैरिज नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब है, आई वाज जस्ट 17 इयर्स और वहाँ बैठकर 4 घंटे में वो एक छोटा सा थॉट कैंसर की तरह फैल गया पूरे दिमाग में। और 4 घंटे में फादर पूछ रहे थे कैसे चल रही पढ़ाई, मैं कह रहा था अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे पता था क्या होगा। आप सबका एक्सपीरियंस है ऐसा? तो वही जो सर कह रहे हैं कि जिसको कि जब माइंड उस थॉट से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम वो सारे पेन को एक्सपीरियंस करते हैं जो उस थॉट के साथ आ जाते हैं। तो सर से मेरा दूसरा प्रश्न यही है, जस्ट एलैबोरेशन ऑन दिस, ये आपने अच्छा बताया पॉइंट, कि ये थॉट से क्या होता है, एक पूरा इमेज बन जाता है, फिर वो इमेज फुल स्क्रीन इमेज हो जाता है, और फिर वो फुल स्क्रीन इमेज से एक मूवी हो जाता है। अब पहले तो ये मूवी लगता है कि ये अच्छा रोम कॉम मूवी है, पर बाद में पता चलता है कि ये ट्रेजेडी मूवी है। तो इस तरह से ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसका वर्णन गीता में 2.62 और 63 में आता है। तो
अभी जितना ये मूवी बढ़ते जाता है उतना हम उसके अंदर फंस जाते हैं। जितना पहले क्लिक करके उसको रोक देंगे, द अर्लियर द बेटर इट इज़। सर ने एक बहुत पहले, जब मैं सर काफ़ी सालों से प्रचार कर रहे थे तो आईटी खड़गपुर में भी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी उस समय, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर जैसे साइट से दूर चला जाए तो वो मूवी रुक जाती है, लेकिन जब तक वो साइट में रहेगी आप मूवी बनाते रहो। कई बार आप लोग यहाँ बैठ के मूवी बना लेंगे बच्चे, क्योंकि उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा है कॉन्स्टेंटली। वो जैसा ने कहा घूम फिर के यही आ जाएगा कि आपको दुखी बना देता है। सर प्लीज। यस, सो व्हाट यू आर सेइंग, आई वाज गोइंग टू कम टू दैट सेम पॉइंट कि हमारे माइंड को मैनेज करना है तो उसमें दो डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं। एक है कि माइंड को ही डिस्टर्ब मत होने दो, दूसरा है अगर माइंड डिस्टर्ब हो गया है तो खुद डिस्टर्ब मत हो। मतलब क्या है कि हमारे फ़ोन में आप सारे जो डिस्ट्रैक्टिंग नोटिफिकेशन है वही बंद कर दो, ताकि क्या होगा, वो नोटिफिकेशन आएगी नहीं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे बोल रहे हैं कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर ये सोल है और ये माइंड है तो ये हम कुछ बाउंड्री बैरियर बना देते हैं ताकि जो भी डिस्ट्रैक्ट करता है वो हमारे मन की ओर आता ही नहीं। हम सबके चीज़ में हमके आजू बाजू में होता है कि कुछ लोग होते हैं हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा गॉसिप करते हैं, या कुछ होते हैं कि वो कुछ लोगों की अनहेल्दी हैबिट्स होती है, या हम खुद जो है अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बाजू में ही अगर बेड है तो अरे सो जाते थोड़ा। अगर आप लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करते हो तो वो टेम्पटेशन नहीं रहता है, आउट ऑफ साइट। तो एक है वन वे टू मैनेज द माइंड इज कट ऑफ द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस, तो वो उनसे दूर चले जाओ या उसको आपसे दूर कर दो। अभी वो अगर नहीं हो पाया, ये हम सारे जो डिस्ट्रैक्शन हैं उनको टाल नहीं सकते। अब काफ़ी कुछ हद तक हम टाल सकते हैं, वो टालना चाहिए, पर वो अगर नहीं होता है तो क्या करना है, हमें दूसरा बाउंड्री है, ये याद रखना है कि आई एम नॉट माई माइंड। ये मेरा स्क्रीन है, उसमें और मुझ में डिस्टेंस है। तो ये जो है ये होता है रेगुलेशन से, कि हम हमारे एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं मतलब आप ऐसी परिस्थिति में जाओ जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, और ये जो अंदर हम में और हमारे मन में डिस्टेंस लाना है वो मेडिटेशन से होता है। अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हो तो उससे क्या होता है, भले ही कोई बोलते हैं अरे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी हम ओम कर रहे थे, डीप ब्रीदिंग कर रहे थे, आप हरे कृष्ण मंत्र है, अलग अलग मंत्र से जप कर सकते हैं। जो मेडिटेशन जब करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे मेरा माइंड फोकस नहीं कर रहा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे वो भले ही वैसे हो रहा है, वी कैन ब्रिंग द माइंड बैक। बट एटलीस्ट क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से समझता है कि एक्चुअली मेरे अंदर कोई चीज़ है जो बार बार इधर उधर घूम रही है। वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आवर माइंड एंड हाउ इट डिस्ट्रैक्ट्स अस, और वो भी एक प्रोग्रेस है। तो उससे क्या होता है कि हाँ, मन इधर भटक रहा है वापस लेके आओ, भटक रहा है वापस लेके आओ। उससे क्या होता है कि ये हमारे इंटरनल सोल और माइंड में जो डिस्टेंस है बढ़ता है। सोल का जो मसल्स होता है, मन भाग गया वापस लेके आओ, मन भाग गया वापस लेके आओ, वो मसल्स इंप्रूव होते हैं। तो मेडिटेशन क्या है, ये एक तरह से एक स्पिरिचुअल वर्कआउट है। हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो स्पिरिचुअल वर्कआउट मतलब क्या है कि हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप मेडिटेशन करोगे तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, हाँ ज़रूर माइंड का डिस्टर्बेंस कम होगा, पर माइंड डिस्टर्ब सबका होने वाला है। तो जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब बाय इट। इसी में सर के मैं ऐड करता हूँ, एक बार ये स्टडी हुई थी धर्मशाला में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तो उन लोगों ने कंपैशन मेडिटेशन सिखाया था लोगों को। जैसे आप कंपैशन करते हैं, हम लोग तो एंगर मेडिटेशन करते हैं ज़्यादातर, राइट, या गुस्सा करते हैं, तो उनको सिखाया गया था। पूरे टीम को 200 लोगों को लेके गए, और जिनका बायोलॉजी का थोड़ा बैकग्राउंड है, तो आपके डीएनए के एंड में टेलोमेयर होता है। तो हर बार डीएनए डिवाइड होगा तो टेलोमेयर क्या हो जाएगा, कट हो जाता है। सो दैट डिफाइंस ए बायोलॉजिकल एज, यानी आपके अगर डीएनए निकाला जाए तो आपका टेलोमेयर देख के बताएंगे कितने एज आपका हो गया है। जनरली ये कम होता रहता है। तो इस ग्रुप को, मेडिटेशन वाले ग्रुप को, पहले इनका टेलोमेयर नापा गया
2 महीने इनको बोला गया कंपैशन, आउटवर्ड पॉजिटिव वाइब्रेशन कंपैशन फेंको, एंड दे प्रैक्टिस इट फॉर 2 months। 2 महीने बाद आयरनी क्या हुआ, उनका टेलोमियर कम हो बढ़ गया, उनका टेलोमियर बढ़ा पाया सिग्निफिकेंटली, राइट। तो एज दे वर मोर एब्जॉर्ब इन पॉजिटिव वाइब्रेशन, that even changed their hardcore structure of DNA टेलोमियर लेंथ, और वो एनहेंस कर गया उनका एज। जो लोग जे की तैयारी करते हैं उनका टेलोमियर क्या हुआ होगा, बढ़ा है, कम हुआ है, कम हो गया, राइट। आपने देखा होगा जितने बच्चे आ रहे होंगे, कई लोग थोड़े अभी से थोड़े बोलने लगते हैं, राइट। मेरे हमारे हॉस्टल में अगर किसी का ऊपर का फ्लोर है तो उसको लगता है कौन जाएगा, और एक बार ऊपर चला जाए तो मेस खाना खाने भी नहीं आते, कौन जाएगा, राइट। तो आप देखो यंग एज के 18 साल 20 साल शरीर एक बोझ की तरह लगता है, और उसको समझ में आ जाता मैं ये शरीर हुई नहीं, इतना भारी शरीर जा ही नहीं रहा, तो उससे एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं। तो जैसे सर ने कहा कि हमारा जो माइंड है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, और मेडिटेशन हम इसको शांत कर सकते हैं। मैं सर अगला प्रश्न ये पूछूंगा, मेरा एक मित्र था खड़गपुर के, बताता हूँ, वो एक बार कॉलेज आया, आधे रास्ते से वापस जा रहा था। मैंने क्यों जा रहे हो वापस, तो बोला मैं अपने कमरे का रूम लॉक किया है कि नहीं किया पता नहीं, वापस जाकर चेक करता हूँ किसने किया ऐसा। हाँ बताइए, हाँ बताइए, आप में से कई लोग हाथ नहीं उठा रहे, तो पीछे देखते हैं, जब सब उठाएंगे वो भी उठा लेते। तो प्रैक्टिकली हम सब लोग कई बार इतने घबराते हैं, लॉक करते हैं और सोचते हैं लॉक वर्क नहीं हुआ, आधे रास्ते पे फिर वापस आते हैं। तो ये माइंड हमारा वीक, क्या ये वीक हो गया हमारा माइंड, हमें हर बार कंफ्यूज कर देता है, कोई भी चीज़ हम कॉन्फिडेंटली नहीं करते हैं, हम बार बार नेगेटिव के चीज़ में फंस रहे हैं, या बार बार पिक्चर बनाने लग रहे हैं। तो ये वीक माइंड की निशानी है। सर वीक माइंड होता क्या है? तो जो इसे बताया था, शरीर जैसे होता है वैसे मन भी होता है। तो गीता का जो मॉडल है सेल्फ का, इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे इनर वर्ल्ड में जो हो रहा है वो समझना आसान हो जाता है। मैं अमेरिका में ऐसे ही एक ऑडिटोरियम में सेमिनार दे रहा था, तभी वो ऑर्गेनाइज़र मुझे कुछ बताना चाहते थे, तो पीछे से आ गए, मैं शोल्डर को टैप किया। जब टैप किया ऑलमोस्ट विंस्ड, सॉरी, तो मैंने बताया कि मैं पहले यहाँ पे गिर गया था, थोड़ा स्प्रेन है मुझे। ओह आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट नो दैट। तो अभी क्या हो गया, नॉर्मली किसी का शोल्डर पे टैप करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो नॉर्मल कैसे होता है कि अगर थोड़ा सा स्टिमुलस आया तो उतना ही रिस्पॉन्स आ जाएगा, पर अगर यहाँ पे इंजरी है तो क्या होगा, उतना स्टिमुलस आएगा पर इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो जैसे शरीर में घाव हो सकता है तो ये बॉडी के लिए होता है, यही माइंड के लिए भी होता है। जो माइंड है नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा कुछ डेंजर है तो कुछ फियर आता है, पर जहाँ कहीं घाव होता है, जब घाव होता है तो क्या होता है, छोटा सा डेंजर आता है, बहुत बड़ा फियर हो जाता है। मैं कनाडा में था, एक लेक्चर दे रहा था, तो उसके बाद में आई स्पीकिंग अबाउट द माइंड ओनली, तो उसके बाद में वन इंडियन लेडी जो सेटल इन कनाडा, शी केम एंड सेड कि उसको ड्राइविंग करते, कार में बैठ के ड्राइविंग करने में ट्रॉमा आता है। अभी इंडिया में कार अभी थोड़ा लग्जरी आइटम है, अभी आने लग गया है कार, बट वेस्ट में कैसे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम है, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी नीड्स टू हैव अ कार। जैसे अमेरिका में व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी, मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे कार में सोना पड़ता है। भारत में बोलेंगे आपके पास कार है तो आप गरीब कैसे हो, पर क्या है वहाँ पे लोगों के पास घर नहीं होता है पर कार होता है। तो कार इज़ लाइक अ नेसेसिटी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पे इतना अच्छा। तो वो बोले कि कार ही ड्राइव कर नहीं पाता, तो क्या हो गया। तो वो थी कि जब वो कनाडा में पहली बार आई और इंडिया में लाइसेंस था उनका, कनाडा में लाइसेंस ले लिया और ड्राइविंग करने वो अपने घर से, शी गॉट मैरिड एंड हर हस्बैंड वाज ऑलरेडी सेटल्ड कनाडा, वो अब जा रही थी कहीं, तभी somebody just jumped in front of the car. That person wanted to commit suicide apparently. उसे कार के सामने कूद गया और क्या तुरंत ब्रेक मारा जोर से,
पर इतना अनएक्सपेक्टेडली आ गई थी और वो कार नॉर्मल स्पीड चल रही थी, स्पीड लिमिट के ऊपर नहीं थी, पर वो उसको ठोक दिया एंड ही डाइड। ना ऑफ कोर्स क्या हुआ, जो आई विटनेसेस थे उन सब ने देखा, बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, तो लीगली शी वॉज रिलीज इमीडिएटली, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। पर उसको इतना भय होने लग गया कि वापस ऐसे हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया है, जो उस अनुभव से मन में एक इम्पैक्ट हो गया है, मन वुंडेड हो गया है। तो जब मन वुंडेड हो जाता है तो क्या होता है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि छोटा स्टिम्युलस बड़ा रिएक्शन। तो इसको संस्कृत में संस्कार कहते हैं। अभी संस्कार जो शब्द है इसके दो अर्थ है। एक पॉजिटिव अर्थ है कि जो ऐसे सेरेमनीज़ है, ऐसे रिचुअल्स है या ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे कि अच्छे संस्कार हो मन पे। और जो दूसरा नेगेटिव अर्थ क्या है, जो पेनफुल इम्प्रेशंस हुए हैं अंदर, जो पेनफुल इम्प्रेशंस। तो अभी मैं ये दूसरा अर्थ ले रहा हूँ। तो इसको जो संस्कृत में संस्कार है, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल सकते हैं संस्कार। क्या है, सब में कुछ स्कार है अंदर, और जो भी स्कार होता है हमारे अंदर उसके अनुसार हम ओवर रिएक्ट करते हैं। तो अभी छोटी चीज़ हो जाती है, कुछ लोगों को छोटी चीज़ पे बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को छोटी चीज़ पे बहुत डर लगता है, कुछ लोग, बाकी लोग बोलते हैं छोटी चीज़ इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, पर वो व्यक्ति को बहुत बड़ा लगता है। क्यों, क्या है, वो अंदर जो है माइंड वुंडेड है। तो जब वीक कहते हैं माइंड को, मतलब क्या, हम कहने का मतलब क्या है कि अरे छोटी सी चीज़ है, तुम इतना एजिटेट मत हो जाओ, इतना क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम इतना मेंटली कमज़ोर क्यों हो। पर वो अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे फ्रैक्चर स्प्रेन हुआ है, दर्द हो रहा है, तो कोई टच करेगा तो क्या होगा, वो दर्द होने वाला है ना। आई कैन ट्राई टू कंट्रोल द पेन, मैं एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा उस पेन को, पर वो पेन अंदर से अनुभव तो होने वाला है। तो उस तरह से क्या है कि हमारा मन भी कभी कभी वुंडेड हो जाता है। तो जब मन वुंडेड हो जाता है तो फिर वो ओवर रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स ये वुंड होता है, उससे उल्टा भी हो सकता है कभी कि पूरा अंडर रिएक्ट करता है। अभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे वुंड हो जाता है कि अगर शरीर में वुंड होता है कि कुछ सेंसेशन नहीं रहता है, तो फिर उसको टच किया तो कुछ लगता ही कि वो स्किन जो वहाँ पे डेडन हो गया है। तो कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग वो इमोशनली डेडन हो जाते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते कुछ। तो भगवद्गीता के लैंग्वेज में ये ओवर रिएक्ट जो होता है वो रजस का लक्षण है, रजोगुण जो कहते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। और जो बिल्कुल अंडर रिएक्ट करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, वो अभी कुछ खतरा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्व करना चाहिए, बधिर जैसे बैठे रहते हैं, वो तमस का लक्षण है। तो बोथ ऑफ देम क्या है, दे आर वुंड्स ऑफ द माइंड। थैंक यू सर। ये सब हम लोग का एक्सपीरियंस हुआ होगा वुंड्स। सर का चीज़ में छोटे से बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑरेंज है और ऑरेंज को आप दबाओगे तो कौन सा जूस निकलेगा, मैंगो जूस करेगा, ऑरेंज ही करेगा ना, राइट। तो सर का कहने का है कि हम लोग इतने सारे स्कार्स कैरी करते हैं, तो जब हमें प्रेशर पड़ता है तो जो अंदर भरा है वही निकलेगा। अगर अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी, इल फीलिंग्स और बर्न्स भरे हुए हैं तो जनरली हम लोग दूसरों को भी वही चीज़ देंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है सर कि हम इस माइंड को मैनेज कैसे करें और इंडियन विजडम इसमें क्या रोल कर सकता है। क्या मैं अपने मन में कैन आई पुट पॉजिटिव इमोशंस ऑल्सो सच दैट कोई मुझे छुए या परेशान करे तो गुस्सा करने के बजाय आई कैन वाइब्रेट नॉट इल फीलिंग बट वेरी पॉजिटिव फीलिंग। तो हाउ टू मैनेज माइंड एंड व्हाट रोल इंडियन विजडम कैन प्ले। यस, तो पहला जो है इंडियन विजडम जो है कि अभी जो साइंस ये केवल वेस्टर्न साइंस नहीं है। जब भी हम साइंस सीखते हैं मोस्टली वेस्टर्न साइंस सीखते हैं। इंडिया में भी एक देयर इज़ अ एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ साइंस विच इज़ कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। तो वेस्ट जो मॉडल है दैट इज़ लार्जली मटीरियलिस्टिक मॉडल है। मटीरियलिस्टिक मतलब क्या है, वो सिर्फ जो ग्रोस फिजिकल थिंग्स है और उनको अफेक्ट करने जो सटल फोर्स एनर्जीज है उसके बारे में विचार करता है। तो उसमें जो वेस्टर्न मॉडल्स है
उसमें वास्तव में माइंड के बारे में बात करते हैं, पर माइंड क्या है इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, और फिर सोल जो है उसकी भी समझ नहीं है ज़्यादा। सो अभी साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन अगर 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में देखते तो स्टडी ऑफ द माइंड, और बाद में बोलने लगे कि माइंड क्या है हमको पता नहीं है, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर जैसे बोल दिया गया। दे ट्राई टू रिड्यूस माइंड टू बिहेवियर। हाँ, माइंड से बिहेवियर होता है, पर केवल वो जो है माइंड उसको भी समझना ज़रूरी है। सो जो एक कंप्लीट कंसेप्शन ऑफ द सेल्फ जो है, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल इन द भगवद गीता, योग सूत्रों में इसका मन में लगभग किस प्रकार संस्कार होते हैं, मन का परिवर्तन कैसे होता है, उसका वर्णन बताया गया विस्तारित रूप से। सो थेरोटिकली स्पीकिंग, अगर साइंस हम कहते हैं, साइंस में दो पार्ट होते हैं, एक थियरी होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो थियरी की दृष्टि से भी जो सेल्फ का थियरी जो है, जो मॉडल है, दैट्स मच क्लियरर इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। और जो अभी हम थियरी तो काफ़ी ओके है, उसके बाद में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं थियरी सही है नहीं समझने के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्या है, वो इनर ग्रोथ के प्रैक्टिसेस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है। तो जिस तरह से साइंस में थियरी और एक्सपेरिमेंट होता है, तो वैसे स्पिरिचुअलिटी में जो होता है फिलॉसफी और प्रैक्टिस होता है। तो फिलॉसफी से जो मॉडल्स मिलते हैं, अभी भगवद गीता का जो फिलॉसफी है उसमें एक सेल्फ का मॉडल है, वो हमने आज डिस्कस किया। अभी प्रैक्टिसेस क्या बोलते हैं, भगवद गीता कहती है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये दो प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अगर माइंड को मैनेज करना है तो ये प्रिंसिपल्स क्या है। अगर मैं पहले इफ आई गो बैक ओवर हियर, जो बॉलीवुड का एग्जाम्पल दे रहा था मैं, अगर मान लीजिए आपको bhagavadgita.com की ओर जाना था और वो bollywood.com ऑटो कंप्लीट आ गया है, तो आपको क्या, अगर आप यहाँ पे है तो से नो टू दिस एंड टाइप bhagavadgita.com फुली। अभी एक बार टाइप कर लिया तो क्या होता है, वो भी हिस्ट्री में स्टोर हो गया है। अगले बार भी टाइप करेंगे तो फिर भी bollywood.com पहले आ सकता है, पर नीचे भी bhagavadgita.com आ जाएगा। और 2 बार अगर टाइप bhagavadgita.com पे जाएंगे, 5 बार जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि मान लीजिए हमको गुस्सा आता है, गुस्सा जब आता है तो दूसरे पे चिल्लाने की इच्छा होती है, पर तभी हम ट्रेन करते हैं कि लेट मी टेक सम डीप ब्रेथ्स, लेट मी चैंट सम ओम, लेट मी चैंट सम मंत्रस। तो वो अगर हम 5 मिनट्स का भी प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट्स का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब क्या है कि हमारे माइंड के ब्राउज़र में एक नया इनपुट डाल रहे हैं। तो जितना वो नया इनपुट डालेंगे हम, तो जब वो प्रोवोक होने की परिस्थिति आएगी तो ओल्ड इनपुट से क्या है, गुस्सा आ गया, चिल्लाओ इस पर। पर जब गुस्सा आ रहा है तो कूल डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, चैंट सम मंत्रस। तो हम हमारे माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अभी ये रीप्रोग्रामिंग करने के देयर आर मेनी प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली यू कैन डू दैट। बट क्या है, जो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास मतलब क्या है, जो करना है उसका प्रैक्टिस करना है मुझे, जो मैं चाहता हूँ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, जैसे bhagavadgita.com पे विजिट करना है, ये अभ्यास हो गया। और जो वैराग्य क्या है, जो मुझे bollywood.com पे नहीं जाना है, आई वांट टू अवॉइड दैट। तो जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कई बार रेपिटिशन पे जोर देते हैं। आप शायद कुछ माता पिता बताओ कि आप नामस्मरण करो, कहते हैं आप प्रार्थना बार बार बोलो, कुछ विष्णु सहस्त्र नाम होगा, हनुमान चालीसा होगा, राम नाम होगा, ये रिपीट करने को बोलते हैं। अभी हमको लगेगा ये एक रिलीजियस रिचुअल है, वो बहुत से लोग उस तरह से करते होंगे, बट इट इज़ नॉट जस्ट दैट, इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर रीप्रोग्रामिंग द माइंड। जितना हम रिपीट करते हैं, अभी देखिए ब्राउज़र क्या है, वो ब्राउज़र को पता नहीं है कि bhagavadgita.com डिस्ट्रैक्टिंग है और bollywood.com डिस्ट्रैक्टिंग है, bhagavadgita.com अच्छा है। वो जो वहाँ पे आपने विजिट किया है वो अपने आप आ जाएगा। तो उस तरह से क्या है, अगर आप 10 बार bhagavadgita.com पे जाओगे तो माइंड ब्राउज़र वो दे देगा। तो जब हम रिपीट करते हैं कुछ अच्छी चीज़, तो वो रेपिटेशन से माइंड का रिप्रोग्रामिंग होता है। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आप सबने टॉक को क्लियर समझ में आया सबको? All of you enjoyed? Yes, sir. So we'll have second session tomorrow also. This PDF you will get it. This will be part of your examination.
राइट? एनी क्वेश्चंस? अभी यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस? प्लीज रेज हैंड। क्या आप लोग को थक गए हो? क्वेश्चंस माइक यहाँ दे सकते हैं। क्लास इज ओनली विल टेक यू क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ यू विल हैव एंड सो लेट्स क्लैप वन टाइम फॉर सर्स वंडरफुल प्रेजेंटेशन। Sir, if the mind is wounded, then how to correct it? मतलब उसको अपन सही कैसे करें? यस, अगर माइंड वुंडेड है तो उसको हमें करेक्ट, उसको हील करना है उसको। Yes, तो अभी कैसे है कि वी विल टॉक अबाउट इट मोर टुमारो, बट जैसे अभी आपको अगर कहीं स्प्रेन हो गया है या किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया मान लीजिए, तो क्या करते हैं, दो चीज़ें हैं उसमें, या हाथ को स्लिंग में डालना पड़ता है या हाथ को कोई कास्ट में रखना पड़ता है, और फिर उसके बाद डॉक्टर बोलेगा 15 दिन के लिए आप हाथ को हिलाओ मत, और वही डॉक्टर 15 दिन के बाद बोलेगा अभी हाथ हिलाओ। तो क्या 15 दिन हाथ नहीं हिलाया है तो हाथ नहीं हिलाने की आदत हो जाएगी, फिर बाद में हाथ हिलाना है। तो वैसे ही क्या है कि जब माइंड वुंडेड होता है तो फर्स्ट इट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन, कि वो और उसको डेंजर में नहीं डालना है। तो जो ये कैनेडियन लेडी आई थी, उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा ट्रॉमा हो गया, मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रही। सो आई टोल्ड हर दैट, मैंने उनको कहा कि आप ये हरे कृष्ण मंत्र है, उसका आप जप का प्रैक्टिस कीजिए एंड जस्ट उससे गेट इनटू द कार। आप कार के ड्राइवर सीट पे बैठिए, आपको कुछ कार को चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कार के ड्राइवर सीट पे बैठिए और देखिए कितने समय तक बैठ सकते हैं, 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। और वो कार आप पूरे एक सिक्लूडेड रोड पे रख सकते हैं, आपके गराज में हो सकता है। जिस सिट ओवर देयर, क्या होता है, माइंड इमेजिन करता है, अरे ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा, एक बार हुआ है वैसे, तो उसको क्या लगता है अभी वैसे वापस हो जाएगा। तो जब हम माइंड इमेजिन कर रहा है कि ये स्टिमुलस का मतलब है कि ये डेंजर आ जाएगा, पर जब हम उसको दिखाते हैं कि अरे वो डेंजर नहीं आया है, तो मैं उनको बोला कि ठीक है, फिर आप वो कार को जेंटली ड्राइव करके आप एक सेक्लूडेड रोड पे, कोई और आपके साथ में, लेट देम सिट ऑन द नेक्स्ट सीट। अभी ऐसे होते हैं कुछ ट्रेनर कार्स होते हैं जिसमें 2 ड्राइविंग व्हील्स होते हैं, तो एक व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, दूसरा उसको कंट्रोल कर सकता है। Let temporarily you can hire a car like that. Let somebody sit. So small steps. तो बेसिकली क्या होता है कि माइंड जो इमेजिन कर रहा है ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ा सा करने से वैसा अगर नहीं होता है तो फिर द माइंड अंडरस्टैंड्स एक्चुअली मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो सही नहीं है। तो इसीलिए क्या प्रोटेक्शन जो हम उसको देते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से प्रोटेक्शन देते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो क्या है, वो माइंड को, जैसे अब कोई हाथ को फ्रैक्चर हो गया है तो उसको आप कास्ट लगा रहे हो, तो उस समय माइंड पूरा सेफ एक्सपीरियंस करता है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होते हैं वो माइंड को एक अनचेंजिंग रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। तो जो सेफ्टी सिक्योरिटी एक्सपीरियंस करता है, फिर ग्रेजुअल री एंगेजमेंट, स्मॉल स्टेप्स। अगर व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं चला नहीं पाऊंगा, चला होती है, सिर्फ बैठ जाओ। सो शनै शनै रूपरमेत, मतलब ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप। सो 2 थिंग्स, जो अभ्यास और वैराग्य, इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि प्रोटेक्ट द माइंड थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड देन इंक्रीमेंटल एंगेजमेंट, स्मॉल ग्रेजुअल स्टेप्स। End here, all of you, as I mentioned, tomorrow same time. So section F की क्लास मैथ है, उसको हमने IKS से एक्सचेंज कर दिया, मैथ सुबह हो जाएगी, सेक्शन F का IKS। Sir, I want to. Nice display disconnected. What do you want? I want to display a QR. Send it to me. Sir, I want to ask that every day when we start our day, we make a particular goal that we have to do a particular task. And at the end of the day, we realize that we have not been able to complete it fully or partially completed. And that same process happens for a larger duration of time, let's say a week, a month, or even sometimes a year. How to come out of that cycle and make sure that we complete that goal which we set in the morning for today. Thank you. आपका नाम? Aryan. आर्यन। Okay.
So see, there are, जब हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, there are 3 possibilities. फर्स्ट है कि हमने हमारी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट किया है. कोई मान लीजिए जिम में जाता है, सोचता है कि मैं इतना वज़न उठाऊंगा, वो उतना वज़न उठा नहीं पाता है. क्यों? शायद उन्हें कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट किया. तो शायद हमारे दिन में हम 10 चीज़ें कर सकते थे, पर हमने 15 चीज़ें करने का प्लान कर लिया. तो समटाइम्स वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हमारा कैपेसिटी बढ़ सकता है. सो एक तरह से क्या होता है कि कई बार हम खुद को जज करके खुद को क्रिटिसाइज़ कर लगता है, तुम तो वर्थलेस हो, तुम कुछ प्लान करते ही नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है. डोंट हैव दैट एटीट्यूड. क्या है कि ये मैं हूँ और यहाँ पे मुझे काम करना है. खुद को ऑब्जर्व करो. विल टॉक टुमारो मोर अबाउट ऑब्जर्विंग आवरसेल्व्स. सो पहला पॉसिबिलिटी हमने खुद को ओवर एस्टिमेट किया है. दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए. मतलब क्या है कि जो हम करने वाले थे, मान लीजिए अभी फिजिकली क्या होता है कि अगर आप हॉस्टल से कॉलेज आने वाले हैं, अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं आप कोई मूवी देखने चले गए, कहीं मेस कहीं खाना खाने चले गए, कहीं जॉगिंग, जस्ट यू स्टार्टेड प्लेइंग और फूलिंग अराउंड, तो वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन इमीडिएटली दिख जाता है. अरे मैं कहाँ गया, कॉलेज में नहीं हूँ मैं. पर कभी ऐसे हम मन की स्तर पर गुमराह हो जाते हैं. तो कैन ट्राई टू ऑब्जर्व व्हेन डिड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो अगर वो करने की कैपेसिटी थी, पर मैं कब डिस्ट्रैक्ट हो गया, कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो समझ के फिर कुछ हम गार्ड रेल, सेफ गार्ड ला सकते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं होना है मुझे. दैट्स सेकेंड पॉसिबिलिटी. सो ब्रिंग सम गार्ड रेल्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जब हम वो करने का प्रयास किया था तो उसको थोड़ा एफर्ट लगता है, और जो एफर्ट है वो करने की तैयारी हमारी नहीं थी. तो भगवद गीता में बोला जाता है कि जो भी अच्छी चीज़ें, वर्थवाइल चीज़ें हमें करनी होती है, दे टेस्ट लाइक पॉइजन इन द बिगिनिंग एंड नेक्टर इन द एंड. वो पहले जो है जहर जैसे लगती है, ऐसे लगता है कि अरे बहुत कठिन है करना, और पहले का जहर देख के सोचे मैं करूँगा ही नहीं है, छोड़ देते हैं. पर क्या है, जब हम पुश करते हैं तो ज़रूर हम कर पाते हैं. तो वो इनिशियल पॉइजन जो है उसे पुश करना है, ज़रूरी है वो. सो हाउ टू पुश दैट, उसके लिए वी नीड मोटिवेशन. सो दैट मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट टुमारो मोर. All of you can leave. We will take attendance tomorrow for both this class. CR